Welcome students, welcome to our guest of honor, welcome Principal sir. First of all, we have to remember that we are gathered here for our skill development program that will be conducted by Mr. Rashmi Ranjan sir. Career counseling helps you to understand the career options that you have and you have to pursue them. Career counseling helps you understand your own strengths and weaknesses with regard to your present courses or profession. Here are different type of skill development programs that will be told by sir today, and he will enhance your knowledge about those skill developmental programs. Now, it is an immense pleasure for me to introduce sir as a guest of honor today. Mr. Rashmi Ranjan sir is the co-founder and CEO of Udaan. He is a famous motivational speaker, management consultant, process trainer, change management trainer, consultant, project management trainer, business coach, social entrepreneur, life coach and communication skills trainer. He is honorary member cum Business Service Employees Chamber of Commerce and Industry. He has also the client of Chennai, Kharagpur, IIM, Engineering and Technology, MMM, etc. He has also been recognized with several awards too, like Asian Educational Award 2021 for Most Innovative Teacher of the Year, Rotary Youth Leadership Award 2000, Award of Excellence presented by Dr. Himanshu Rai, Director, IIM, Indore, and several more awards have been given to him. It has been much more if I will go for his achievement. Thank you, sir. Now I request Mr. Rashmi Ranjan sir to enlighten our student from his experiences. Very good afternoon, Principal sir, Coordinator ma'am, and all my dear students here who are the torch bearers of tomorrow and who are attending this seminar. I, Rashmi Ranjan, on behalf of RBTC, welcome you all to this enlightening session, and I can assure you that as I have committed to you pre-session, starting of before the session, that this is going to be a memorable one. So dear students, I would be expecting all of you to participate in this seminar when I would be asking the question. English, Hindi is welcome. दोनों भाषा में आप जवाब दे सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी जैसा भी आप कंफर्टेबल हो, बट पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। हम लोग मुद्दे पर जाएंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, बट उससे पहले देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आई वुड बी आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, एंड आई वुड एक्सपेक्ट ऑल द यूथ आउट हियर टू पार्टिसिपेट वेल. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, skill, you know, the word has been used multiple times throughout the country. You will find throughout the news channels, you will find various people talking about Skill India. And since 2015, when the Honorable Prime Minister of the country started Skill India, since then Skill India NSDC programs have been used, has been widely flourished throughout the country. लेकिन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रोग्राम्स तो हुए, पर कितने कामयाब हुए, कितने यूथ इसमें स्किल्ड हुए, ये सब एक चर्चा और आत्मविश्लेषण का मुद्दा है। हिसाब से एड्रेस कर रहा हूं, बट आप लोग अब आप लोग उस एज में हैं वेयर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द लीडर ऑफ द कंट्री। आप लोग सभी के पास वोटिंग राइट्स हैं, राइट?
और आप सोचिए, आप देश का नेता चुन रहे हैं और अगर आप अपना करियर ना चूज कर पाए तो कितने शर्म और दुख की बात होगी, राइट? तो जो अपने देश का नेता चुनने के योग्य हो चुका है, उसे अपनी करियर को राइट वाइज डिसीजन लेने का अधिकार है और उसे सही रास्ता भी पता होना चाहिए। रैंक बूस्टर टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर के बिहाफ में एज ए सेंटर मैनेजर ये मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आज कई मुद्दों को मैं उठाऊं और उन पर से, आप कहते हैं ना, बादल छटेंगे और आपको उनके बारे में पता चलेगा। स्किल के बारे में बात करने से पहले मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आर यू गेटिंग एजुकेटेड और आर यू गेटिंग लिटरेट? ये सवाल मैं हर मंच से पूछता हूं, सोच के बताइएगा। आप एजुकेटेड हो रहे हैं या लिटरेट हो रहे हैं? कितनों को लगता है लिटरेट हो रहे हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, एजुकेटेड कितने हो रहे हैं? कोई किसी ने हाथ नहीं उठाया लिटरेट में। एजुकेटेड कितने हो रहे हैं? 2 लोग हो रहे हैं, 3 लोग हो रहे हैं। बाकी कह रहे हैं इलेक्शन में जैसे वो वोट होता है ना, वो बैलेट, उसमें कि नॉट फिट फॉर ये, हम ना तो एजुकेटेड हो रहे हैं ना लिटरेट हो रहे हैं, हम कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहे हैं। सिर्फ 2-3 लोगों ने हाथ उठाया कि एजुकेटेड हो रहे हैं। बच्चों, ये हर जगह, हर मंच से यही स्थिति है। इवन टीचर्स को नहीं पता कि वो एजुकेट कर रहे हैं या लिटरेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, थोड़ा मजा आना चाहिए इस सवाल को। अगर आज आपने इसको समझ लिया ना, आगे के रास्ते आपके लिए आसान हो जाए। देश का सबसे लिटरेट राज्य कौन सा है? साक्षर? केरला। वेरी गुड। मेरा नेक्स्ट सवाल और ध्यान से सुनिएगा। देश का सबसे बेरोजगार राज्य कौन सा है? कितने लोग कहते हैं बिहार? यूपी, बिहार। हाथ उठाइए। क्या हो गया? बहुत कम लोग हाथ उठा रहे, इतने स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें भी चर्चा कर रहे हैं आपस में, यार तुम क्या। ओके, हाथ नीचे कर लीजिए। कभी भी गूगल में डालिएगा केरला। जम्मू कश्मीर अभी फिलहाल नंबर 1 पे है बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स लाइक मिलिटेंसी एंड ऑल। उसके बाद केरला। केरला पहले 3 में हमेशा रहता है, बाकी जाते आते रहते हैं, बट वो टॉप 3 में रहता है। जैसे कोरोना से पहले नंबर 1 केरला, मोस्ट अनएम्प्लॉयड। सवाल को आपने ध्यान से सुना और समझा नहीं। मैंने पूछा था सबसे साक्षर राज्य कौन सा है। सवाल तो ऐसा कुछ बना ही नहीं, सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। बच्चों, ये इसलिए है क्योंकि आपको साक्षरता और शिक्षा के बीच का अंतर आज तक किसी ने नहीं समझाया। इसी के कारण एक सर्वे के अनुसार 47%, 47% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर नॉट फिट फॉर एनी जॉब। 47% ऑफ द यूथ ग्रेजुएट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट इलिटरेट्स, ग्रेजुएट्स आर नॉट फिट फॉर एनी जॉब। उनका स्किल डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। ये उनके लिए शॉकिंग था कि सबसे साक्षर राज्य सबसे बेरोजगार है, जबकि वहां तो 10वां हर कोई पास है। साक्षर मतलब 10वां तो हर कोई पास है। ग्रेजुएट सबसे ज्यादा हैं, फिर भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते अपॉर्चुनिटीज कम है। उस अपॉर्चुनिटीज को कौन ग्रैब कर रहे हैं? बिहारीज सबसे ज्यादा। वहां मलयालम बोल रहा है बिहारी, यूपी का भैया जी मलयाली बोल रहा है, गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, उनका पूरा कम। 30 लाख लोग बाहर के राज्यों से वहां केरला में जॉब्स कर रहे हैं, जो केरलाइट्स नहीं कर रहे हैं। मुख्यतः वहां कौन सा बिजनेस है? इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को नौकरी की जद्दोजहद में अब आने वाले कुछ सालों में पढ़ना है। अगर आज के इस सेमिनार को आपने बातचीत, हंसी मजाक में कर दिया, तो वो बगल वाला दोस्त फिर आपको दिखेगा नहीं 1-2 साल बाद। आप और आपकी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि काश मैंने कॉलेज के वो दिनों को सही से यूज कर लिया, कुछ सुन लिया होता, समझ लिया होता। ठीक है, लाइफ लॉन्ग अगर मुस्कुराना है तो इस समय को थोड़ा सीरियसली से अटेंड कर लीजिए। आपको लगता नहीं यही सवाल आपको सोच में डाल रहा है कि आप साक्षर हो रहे हैं या शिक्षित? और सबसे साक्षर राज्य सबसे बेरोजगार राज्य है। राइट मैम, राइट। You are getting literate. Right. Absolutely. Absolutely. Right. Very good. Your good name?
Right. Okay. Literacy is the subset of education. सेट एंड सबसेट आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, क्लास 9th में, सर्किल और उसके ऊपर जो सर्किल है, सेट मीन्स सेट एंड सबसेट, लिटरेसी एजुकेशन का पार्ट है, राइट? थैंक यू। देखिए, गुड। तो नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग कि आप लिटरेट हो रहे हैं या एजुकेटेड हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? केरला में स्किल डेवलपमेंट की कमी है। Students are getting graduates, they are getting their BA, BCom, BSc, whatever degree, but then they are not having the hands-on experience with maybe welding because they want to be manager. I am a graduate, I cannot get below the car and do the tire repairing. That's just something of my ego. That I will not do because I am a graduate. वहाँ बिहारी भाई पहुंच जा रहा है, सर मुझे दे दीजिए, बिहार में 300 रुपया मिलेगा, मैं यहाँ केरला में आपसे 800 रुपये लूंगा, डबल से भी ज्यादा। बिल्कुल देंगे, बिकॉज देयर इज ए मैन पावर शॉर्टेज। वहां के तमाम रेस्टोरेंट्स में सफाई कर्मचारी बिहार यूपी से हैं। 800 रुपया इंजीनियर को नहीं मिलता है एक दिन का, 800 रुपया एक सफाई कर्मचारी को मिल रहा है, प्लस रहना खाना अलग से, क्योंकि वहां मैन पावर शॉर्टेज है। केरलाइट्स आर नॉट रेडी टू डू ऑल दिस ऑड जॉब्स, दे हैव द एटीट्यूड, इसीलिए ऑड जॉब्स कर रहे हैं, ऑटो चलाना एंड ऑल। डबल PhD इज ड्राइविंग एन ऑटो। आई हैव मेट वेरियस पीपल देयर and I know the situation on the ground level. बाहर से everything looks good. बच्चों, अलार्मिंग सिग्नल है आप लोगों के। बिहार कैसे बेरोजगार हो सकता है? बिहार में अपॉर्चुनिटीज कम हो सकते हैं। पूरा का पूरा पंजाब तो बिहारी चला रहा है, पंजाबी तो कनाडा में जाकर बसे हुए, उनकी जमीन और घर तो बिहारी चला रहा है। सोनू सूद का वीडियोस देखिए कि केदारनाथ में अकेला एक बिहारी एक लोगों के घर बना रहा है। तो पहले ये मिथ्या आपके दिमाग से हटनी चाहिए, क्योंकि ये आपको नेताओं ने, आपके परिवार ने आपको बताया है। उस मिथ्या से कोई भला नहीं होगा आपका। काम करने के लिए 24 घंटे ही हैं, पर आप कितने कार्य को कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के अनुसार, स्किल्ड के अनुसार। आपके पास अगर, तो आपको समझना जरूरी है कि आप जब स्किल्ड होते हैं तो आप साथ लिटरेट नहीं हो रहे हैं, आप उस लिटरेसी को वाइडर स्केल पर सोच रहे हैं। इसको कैसे समझेंगे? 16 साल का बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट। आइडिया आया, उसने काम शुरू किया और फेसबुक की रचना कर डाली और माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया बिल गेट्स ने। आज उनके कंपनीज में भर भर के सबसे ज्यादा कौन है? इंडियंस। Sir, we are PhD, sir, we are MBA, sir, we are MBA, sir, we'll do sir 12 hours a job in your company. हम क्या करेंगे? हम लोग नौकर साह वाले देश हैं, हम लोग बहुत अच्छे नौकर पैदा करते हैं। आइडियाज आप लोग पैदा कीजिए, मालिक आप पैदा कीजिए, काम करने वाले हम लोग हैं, चश्मे से ऐसे ऐसे काम करने वाले, वो हम भारतीय हैं। क्योंकि यहां सवाल क्या किया जाता है? हमारी शिक्षा पद्धति पर मैं हमेशा सवाल उठाता हूं। हमारी एजुकेशन सिस्टम इज अ रॉट एजुकेशन सिस्टम, रटंत विद्या। एक जनरेशन दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, लेकिन नई आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट कोई नहीं लेकर आ रहा। बिजली का आविष्कार, फोन का आविष्कार, सारी चीजों के आविष्कार तो आपके विदेशी लोग कर रहे हैं, अमेरिका, यूरोपियन लोग कर रहे हैं। इवन भारत से सीवी रमन साहब को जाना पड़ा विदेश, अमेरिका। रामन इफेक्ट की खोज वहीं हुई। तो हमारे देश में रिसर्च पर कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत समय बाद अभी सरकार ने, जब से आई करंट गवर्नमेंट, तो हमें चंद्रायन भी देखने को मिल रहा है। और आज ही आया है पिछले इसरो के साइंटिस्ट का स्टेटमेंट कि पिछली सरकारों ने हमें वो बजट ही नहीं दिया जो हम रिसर्च कर सकते थे। उन्हें हम पर भरोसा नहीं था, उन्हें लगता था नासा इज बेटर देन अस। आज इसरो हमारी देश की जो संस्था है, जिसके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस देश का यूथ एक्नॉलेज नहीं करेगा, जिस देश के साइंटिस्ट ने गर्व दिया, पूरे देश को गौरवान्वित किया कि साउथ मून के साउथ छोर पर लैंड करना अपने आप में एक बड़ा ही मुश्किल टास्क था, जिसमें हम लोग फेल हुए पिछली बार। तो आप देखिए कि कॉन्फिडेंस
जब मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस, एजुकेशन सिस्टम, प्रिंसिपल सर हो, मैनेजर सर हो, अगर वो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं अपने बच्चों पे कि हमारे स्टूडेंट्स भी बाकियों से पीछे नहीं हैं, इनको अगर प्रॉपरली कॉलेज में रहते हुए स्किल्ड कराया जाए तो ये भी डायरेक्ट कॉर्पोरेट्स में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। इनकी पर्सनालिटी पर अगर काम किया जाए तो ये भी बेहतर से बेहतर लोगों के साथ कंपीट कर सकते हैं। तो माननीय सरकार, माननीय प्रधानमंत्री ने जब कॉन्फिडेंस दिखाया इसरो के टीम के ऊपर, तो उन्होंने कर दिखाया और इतिहास रच डाला। पहला देश जो चंद्रमा के साउथ छोर पर लैंड किया, भारत, चंद्रयान 3 के द्वारा। तो आपको यह समझना जरूरी है कि आप एजुकेटेड हो रहे हैं या बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो क्या कॉमर्स के जो आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल में क्या आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं? क्या आपके पास मौके हैं? क्या आप कॉलेज में ही रहते हुए कोई पार्ट टाइम इंटर्नशिप या ट्रेनिंग कर रहे हैं कहीं पर शाम के समय 2 घंटे? तो ये मैं चाहता हूं पहली चीज आपको ये बताना कि जब तक आप प्रैक्टिकल में करके नहीं देखते हैं अपनी पढ़ाई को, आप रियल मायने में कभी एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे। अगर आपके पास कोई नई आइडियाज है, उसको अगर आपको कार्यान्वयन करने का मौका नहीं मिलेगा, यू विल नेवर बी एबल टू बी सक्सेसफुल। आज का डिमांड है एंटरप्रेन्योर्स पैदा करना, स्टार्टअप आइडियाज को प्रोड्यूस करना। 4 C's की बहुत जरूरत है आज। पहला है क्रिएटिविटी, रचनात्मक होना बहुत जरूरी है, क्रिएटिविटी। दूसरा C से है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है लैटरल थिंकिंग, ऑल्टरनेट थिंकिंग, इसके बदले और क्या कर सकते हैं, कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को धरती, किसी को आसमान नहीं मिलता, लेकिन कैसे काम को निकालना है ये आपको आना जरूरी है। आज की कॉर्पोरेट चाहती है कि आज का यूथ कहे कि मैं आपकी कंपनी को ये दे सकता हूं जो बाकी नहीं दे सकते। वो पूछेंगे, एंड पोस्ट कोविड सिनेरियो इज व्हाट कैन यू डिलीवर फॉर अस? आप हमें क्या दे सकते हैं, हमारी कंपनी को कैसे फायदा दे सकते हैं? तो क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, कम्युनिकेशन। इंग्लिश एंड हिंदी कम्युनिकेशन इज मस्ट। You should be able to deliver your ideas both in English and Hindi. So you need to work on your communication. सर हम तो गोरखपुर से हैं सर, भोजपुरी बढ़िया बोल लेते हैं। Corporate doesn't need भोजपुरी। Good in Hindi and very good at English. Right? और चौथा, क्रिटिकल हो गया कम्युनिकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये बहुत जरूरी है। Male and female both are working together in the company. You are studying here together. You are working together in the company. And if you are not having a strong character, you will not survive. You will be blacklisted. You will not be required by the companies. So 4 C's, clear to everyone? Critical thinking, character building, communication, and creativity. So 4 things are must, these 4 C's. So when I'm talking about skill development, वो ऐसे नहीं होता आओ बच्चों जरा वेल्डिंग सीख लेते हैं, आओ बच्चों हम लोग जरा हेज फंड, कैपिटल मार्केट के ऊपर पढ़ लेते हैं। हर कोई पढ़ रहा है। Everyone who is doing BCom in the country is reading the same subject. How are you different? Why? Because companies are having 50 jobs, 100 jobs, 100 vacancies. And how many students are there applying for it? More than 20-30,000 students, even more than that, are applying for 100-200 vacancies. तो पहला ये एक स्लोगन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये याद रखिए, लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी। चूज ए प्रोफेशन बाय चॉइस, नॉट कंपल्सन। चॉइस से किसी भी प्रोफेशन को चूज कीजिए, ना कि मजबूरी में। कंपल्सन मतलब मजबूरी। शर्मा जी, वर्मा जी का बेटा इंजीनियर बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, तो तुम्हें भी बनना होगा। फॉलो योर ओन पैशन। बनना क्या है आपको पहले? तो आपकी पढ़ाई आपको किसी बाउंड्री में अगर बांध के रखती है कि मैं तो केरला से बाहर नहीं निकल सकता, मैं मलयालम लैंग्वेज के अलावा कंफर्टेबल नहीं हूं हिंदी भाषी प्रदेश में जाकर काम करने के लिए, तो आप बेरोजगार रहेंगे PhD करने के बाद भी।
फिर आप बोलेंगे भाई यहाँ ऑटो चलाने को मिल रहा है, मैं वही करूंगा, लेकिन मलयालम ही बोलूंगा और मलयालम से बाहर नहीं जाऊंगा। आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम को? आज आपको कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है समझने को। ये जरूरी है आप युवाओं को समझना। उसके बाद आते हैं कि रैंक बूस्टर टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर क्या है। आपने देखा होगा, आप इसी रोड में जब बैंक रोड की तरफ जाते हैं तो आरबीटीसी का सेंटर, एक बड़े सा शीशा का दरवाजा है, वो आरबीटीसी का सेंटर नया जुलाई में खोला गया। ये आपकी नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी जो संस्था है, जिसके अंदर एमजी पीजी कॉलेज, इंटर कॉलेज, राम नारायण गर्ल्स कॉलेज, प्रेम नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह संस्था चल रही है, अब उसी में एक जुड़ गया रैंक बूस्टर टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर। और मुझे इसमें जोड़ा गया, कहा समझा बताते हुए कि हमारा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे या तो इंटरशिप में पास हो रहे हैं वो आईआईटी मेडिकल के लिए तैयारी उनकी यही कैंपस में कराकर उनको भेजा जाए, ताकि वो रिजल्ट निकाल सकें या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर सकें। और हमारे यहाँ के जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको 6 महीने का कोर्स करा के, इसके साथ पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे स्लाइड में, वहां से 6 महीने का कोर्स कराकर यही कैंपस में, यही ऑफिस में उनके फैकल्टीज आएंगे, आप लोगों को मौका मिलेगा जाकर वहां पर प्रोग्राम अटेंड करने का। 6 महीने का प्रोग्राम होने का मतलब है मार्च आ जाएगा और कैंपसिंग का टाइम, जहां आप अपना बीकॉम कंप्लीट करेंगे, इधर से पीआईबीएम का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंप्लीट, जो कि एनएसडीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसका साइन रहेगा, पीआईबीएम का रहेगा और आरबीटीसी का। ठीक है, तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि 2030 तक 29 मिलियन मैन पावर शॉर्टेज रहेगा और इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में काउंट हो रहा है जहां मैन पावर शॉर्टेज है। देखिए, दुनिया का सबसे आबादी वाला देश और वहां मैन पावर शॉर्टेज हुआ है। 29 मिलियन में मैं बात कर रहा हूं, तो कितना आएगा? इकाई इकाई करके आप देखिए, करोड़ के आसपास आ जाएगा, 2 करोड़ 90 लाख, है ना? इतना मैन पावर शॉर्टेज होगा 144 करोड़ की आबादी वाले देश में 2030 तक। क्योंकि एजुकेशन और देखिए, पहले आपको क्लियर हुआ लिटरेसी और एजुकेशन के बीच का अंतर, अब हम लोग एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के बीच का अंतर को समझते हैं। आप एजुकेटेड हो गए, आपने प्रैक्टिकल किया, आपने उसको समझ लिया, पर अब कंपनी को चाहिए कि अब हम लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बीकॉम या के लोगों से हम उम्मीद कर रहे हैं उन्हें टैली, ईआरपी वगैरह आना चाहिए। आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, आपकी कॉमर्स वाली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, पर आपको टूल्स यूज करना नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल। और कंपनी को वो लोग चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए या जो भी है, जिनको टैली या ईआरपी यूज करने का अनुभव। आजकल गोरखपुर के नॉर्मल शोरूम्स में टैली यूज हो रहा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और आपने मान लीजिए बीकॉम किया और आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आता ही नहीं है, आपको कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं आता है, तो आप कैसे 25,000, 20,000, 30,000 के पैकेज को जस्टिफाई करेंगे? आप समझ रहे हैं? कितनों को लगता है कि बात में दम है या फिर हवा वाली बातें हैं? हाथ उठाइए, कितनों को लगता है कि ये डिमांड है? राइट? मैं वही जानना चाह रहा हूं कि कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि मुद्दा कितना जटिल है और आपको जानना जरूरी है। तो इन मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे पीआईबीएम 6 मंथ सर्टिफिकेशन विद प्लेसमेंट गारंटी के साथ रिटर्न में मिलेगा। ब्रॉट यू बाय आरबीटीसी सेंटर गोरखपुर। तो मैं जैसा बता रहा था, पीआईबीएम इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स में काउंट होता है। आने वाले स्लाइड्स में आप देखेंगे कि कितनी भारी रेटिंग इसकी है विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं से। 18 एकड़ के जमीन पर बसा हुआ ये लैविश कैंपस है पुणे के आउटस्कर्ट्स पे। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जो कि AICTE अप्रूव्ड है, MBA प्रोग्राम जो कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। 700 से ज्यादा कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स जो हैं वो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का जो गैप है उसको पाटते हैं। 700 से ज्यादा कॉर्पोरेट जो लोग हैं वो एक्सपर्ट्स आकर पीआईबीएम के स्टूडेंट्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनकी जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको अपस्किल करते हैं। क्योंकि बच्चों ये जानना आपको जरूरी है
कि स्क्रैच से कोई नहीं पढ़ाएगा, हर कोई आकर कहेगा ओके सो आई अज्यूम दैट यू नो दैट। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप कहोगे सर मुझे कॉमर्स में कुछ भी नहीं आता, तब नहीं कोई पढ़ाएगा, कहेगा फिर वापस गो बैक टू स्कूल, राइट। आपको अपस्किल किया जाएगा, यानी आपको और ज्यादा उस पर महारत हासिल कराया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। 700 से ज्यादा 750 से ज्यादा कंपनियां PIBM में कैंपसिंग करती हैं, कैंपस प्लेसमेंट देने आती हैं। एडवांस टीचिंग और ट्रेनिंग जो है, करिकुलम को डिजाइन किया गया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो मैंने बताया 700 से ज्यादा कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स, उनकी सलाह लेकर करिकुलम को डिजाइन किया गया है, जिससे कि बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो सके। मैं आपको एक बात बता रहा था, 47% ग्रेजुएट किसी भी नौकरी के लायक नहीं है, तो बचे कितने? 53। उस 53 में से नारायण मूर्ति सर, उनका कहना है मात्र 10% IITian ही डायरेक्ट प्रोजेक्ट पर लगाने के योग्य रहते हैं, बाकी को स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। IITians की बात हो रही है। तो 47% तो चलिए कोई काम के नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट हो गए, पर कोई स्किल उनको दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनका फाउंडेशन ही गड़बड़ है। डिग्री मिल गया, कई यूनिवर्सिटीज आजकल प्राइवेट डिग्रीज बांट रहे हैं, मिल गया, पर अब उनके पास स्किल नहीं है, कभी कॉलेज भी नहीं गए, डिग्री मिल गया, अब वो किसी नौकरी के लायक हैं किसी नौकरी के लायक? अब जो 53% है, जिसमें IIT, NIT, IIM सब जोड़ लीजिए, 10% ही ग्रेजुएट डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे लगाने के योग्य है। रिमेनिंग 43% जो हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जरूरत है। बाय द वे, कितने बच्चों को ये प्रोग्राम इंटरेस्टिंग लग रहा है उनके करियर के लिए? हाथ उठाइए। गुड मैम, जस्ट फॉर योर नॉलेज, बच्चे हाथ उठाइए आप लोग। ठीक है, तो इतने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वेरी गुड। तो इस वर्कशॉप का समापन मैं अपने तरफ से इस बात से कह रहा हूं, बड़ा लक्ष्य है, बड़ा ध्येय है सामने, कर उठते कितने मसाल को थामने, निर्णायक क्षण आज भोग या त्याग का, आए जिन्हें जनहित के लिए अनुराग है। चलो साथ यदि मुसीबतें स्वीकार हो, आवश्यक नहीं कि हाथ हजार हो, सृजनशील हो चाहे 2 या 4 हो। इतना ही नहीं, आगे बूढ़ा भीष्म पितामह, पीछे कर्ण छली, दाएं द्रोणाचार्य बीसियों, बाएं बाहुबली। चक्रव्यूह है कठिन किंतु अभिमन्यु मत घबराना, डर जाने से अच्छा है उसमें घुसकर मर जाना, उसमें घुसकर मर जाना। थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों के लिए भी तालियां। आप लोग, you all have been a wonderful spectators, participants. Thank you so much, college management coordinator ma'am, and I think session was great. As all good things comes to end, so as this event. उसी तरह से ये इवेंट भी आज समाप्त हो गया, ठीक है। On behalf of our Department of Commerce as well as our college, Mahatma Gandhi PG College,
I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this skill development program conducted by Rank Booster Test and Training Center, organized by our department. As the outset, I thank our resource person, Mr. Rashmi Ranjanji. We are really enlightened with your knowledge and presence. We are thankful to our honorable manager sir, who is actually not present over here due to some urgent work, Shri Mankeshwar Nath Pandey ji, for all his support and motivation. I would also like a special thanks to our organizing committee, our teaching and non-teaching staff for their unflinching support and coordination. Our heartfelt thanks to our students for active participation and for being present over here and show their patience.